Hi everyone, today you all will be taught the first chapter of English Gulmohar book of class 8 and the heading of the chapter is The Boy Who Broke the Bank. This is a very funny and interesting story written by Ruskin Bond. First of all, I would like to give you a brief summary of this chapter in English. Thereafter, I'll explain the whole story in Hindi so that every student can understand this story very well and easily. So let us start. There's a sweeper boy in this story whose name is Nathu, who works as a sweeper boy in a local bank, and the owner of that bank is Seth Govind Ram. Nathu is at his work, at his daily work, when Sitaram, a washerman's son, passes by from there, and both of them start talking with each other. Nathu complains to Sitaram that he is not receiving his regular salary. That's why he wants to leave the job. As soon as he will receive his salary, he will leave the job. Sitaram assures him that he will find out a suitable job for him. Thereafter, Sitaram departs from him. Sitaram is also on his daily work. He visits the door of a woman who talks someone about a helping hand. So Sitaram overhears that woman talking to someone that she was in a need of a sweeper boy to sweep her courtyard. Sitaram tells her that there's a boy, Nathu, who is right now working in the local bank owned by Seth Govind Ram, but he wants to leave the job because the bank has not given his salary. And the reason is that bank might be suffering from financial crisis. The bank is not in the good condition of paying the salary to its employees. That woman is ready to give the job of sweeping to Nathu. But this message spreads out in the whole city that the bank is not in the good condition and the employees are not receiving their salary regularly. As soon as the people know about this news, they flock towards the bank to withdraw their money. And the bank is about to be collapsed. So in this story, it has shown that a rumor, misconception or misbelief brings about the collapse of the bank. This is the brief summary of this story. Now I'll explain the story in Hindi so that you can understand very well. Some difficult words are there also that will be explained by me. In this story, some phrasal verbs are also there. I'll also tell about them, what are they, and what phrasal verbs have been used in this story. So let us read the story and know the Hindi meaning of this story. The story is The Boy Who Broke the Bank. Nathu the sweeper boy grumbled to himself as he swept the steps of a small bank owned by Seth Govind Ram, a man of wealth whose haphazard business dealing had often brought him to the verge of ruin. नाथू जो कि सफाई का काम करने वाला लड़का है, वो झुंझलाता है खुद से, गुनगुनाता है अपने से ही, खुद से ही, जब वो एक स्थानीय बैंक के सीढ़ियों को बहारते रहता है, जिस बैंक के मालिक सेठ गोविंद राम है। सेठ गोविंद राम एक धनी व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं, और लेकिन वो जो है ना लापरवाह व्यक्ति हैं। उनका जो काम है वो लापरवाही से भरा हुआ है, जिसकी वजह से
उनका जो व्यवसाय है वो बर्बादी के कगार पर आ खड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसको मैं आपको बता दूं। ग्रम्बल, एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, ग्रम्बल। तो ग्रम्बल का मतलब अगर इंग्लिश में हम कहें तो अ लो थंडरिंग और ग्रॉलिंग साउंड। अगर हम हिंदी में कहें तो भिनभिनाना, झुंझलाना, इसके लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक और वर्ड यूज हुआ है हैपहैजर्ड। तो हैपहैजर्ड का मीनिंग यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है अनऑर्गेनाइज्ड एंड केयरलेस। हिंदी में हम कहें तो लापरवाह, है ना, अव्यवस्थित। एक फ्रेज भी यूज हुआ है इसमें, टू द वर्ज ऑफ रुइन। तो ये जो फ्रेज है, वर्ज का मतलब हुआ किनारा, बैंक, है ना, तो टू द वर्ज ऑफ रुइन का मतलब हुआ बर्बादी के कगार पे। नाथू यूज द स्मॉल ब्रूम हरिडली एंड केयरलेसली। नाथू एक छोटे से झाड़ू का प्रयोग करता है बहुत ही जल्दी जल्दी काम करने के लिए और लापरवाही के साथ। लापरवाही के साथ इसलिए क्योंकि उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो काम मन से नहीं कर पा रहा है। द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड। धूल जो है बादलों की तरह उसके सर के ऊपर उड़ रही है। बादलों की तरह धूल उड़ी हुई है, धूल बन रही है बादल की तरह उसके सर के ऊपर, जो वो बुहार रहा है और धूल उड़ रही है। सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स, जो कि फिर से वो सीढ़ियों पर, बैंक की सीढ़ियों पर धूल सेटल डाउन यानी वो वहां पे आके फिर से बैठ जा रही है। As he began his pen loudly, as he banged his pen loudly against a dustbin, सीताराम the washerman's son passed by. जब वो कचरा उठाने का जो बर्तन होता है, पेन यहाँ पे यूज हुआ है, तो जैसे ही वो उस पेन को, बर्तन को डस्टबिन के ऊपर जोर जोर से पटकता है, तभी सीताराम, जो कि एक वॉशरमैन का लड़का होता है, वहां पे आता है। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। सीताराम जो है वो अपने काम पर है, लोगों को सामान, जो कपड़े हैं उन कपड़ों को दे रहा होता है। He had a bundle of freshly pressed cloths balanced on his head. और उसके पास ताजा कपड़े, आयरन किए हुए कपड़ों का एक गांठ जो है अपने सर पे वो संतुलित किए हुए है, मतलब सर पे वो अपने रखे हुए है। Don't raise such dust, he called out to नाथू। उसने चिल्ला करके नाथू से कहा कि ऐसे धूल मत उड़ाओ। Just as I have told you that some phrasal verbs have been used in this story, so let us first of all know what these verbs are. Phrasal verb is a verb which is combined, which combines with a preposition or with an adverb or with both to give some different meaning, special meaning. For example, you have come across so many times this phrasal verb. This is very common. Look after. See, look after. This is a phrasal verb. Okay. So here look means देखना, after means बाद, के बाद। लेकिन ये phrasal verb है, तो ये phrasal verb इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है to protect, to watch, है ना, to watch, to protect, to watch, to protect। हिंदी में कहें तो देखभाल करना। तो ये फ्रेजल वर्ब है। इसका अगर इसको हम सेपरेट करते हैं तो इसका मीनिंग्स कुछ और होता है, लेकिन जब एक साथ ये प्रयोग में आता है लुक आफ्टर, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है देखभाल करना। तो ये जो है ना एक फ्रेजल वर्ब है। ऐसे ही और भी बहुत सारे इसमें फ्रेजल वर्ब्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब्स यूज हुआ है, कॉल आउट, है ना। जो फ्रेजल वर्ब्स अभी हम लोगों ने पढ़ा वो है कॉल आउट। तो कॉल आउट को इंग्लिश में कहें तो इसको बोल सकते हैं हम टू येल, और हिंदी में तो चिल्लाना, चिल्लाकर बोलना, चिल्लाना। तो नाथू जो है वो चिल्ला करके कहता है डोंट रेज सच डस्ट, ऐसे धूल मत उड़ाओ। आर यू एनवाइड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू अंडर 5 रुपीज अ मंथ। क्या तुम नाराज हो क्योंकि अभी भी वो लोग तुमको प्रत्येक महीने जो 5 रुपए देने की बात की है वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए तुम नाराज हो। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। स्वीपर बॉय जो रहता है या नाथू जो है, वो नाथू कहता है कि मुझे इस बारे में मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। वो शिकायत करता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, मुझे जो नियमित तनख्वाह मिलती है वो भी नहीं मिली है।
Soon 2 months pay will be due. और बहुत ही जल्दी 2 महीने की तनख्वाह जो है वो बाकी रहेगी, बकाया रहेगा 2 महीने की सैलरी. Who would think this was a bank holding up a poor man's salary? कौन सोचेगा कि एक बैंक जो है वो गरीब व्यक्ति के तनख्वाह को रोक रखा है, नहीं दे रहा है. मतलब बैंक की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वो एक गरीब व्यक्ति के तनख्वाह को भी नहीं दे पाएगा. As soon as I get my money, I am off. ज्यों ही मुझे मेरी तनख्वाह मिलती है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, यानी मैं इस जॉब को छोड़ दूँगा. Not another week will I work in this place. And now to bang the pan against the dustbin several times. अगले सप्ताह जो अगला एक दूसरा सप्ताह है तब तक मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा काम के लिए. और फिर नाथू जो है वो उस बर्तन को, कचरा उठाने वाले बर्तन को, पैन को उस डस्टबिन पर बहुत बार जोर जोर से पटकता है, नाराजगी व्यक्त करता है. वेल आई विश यू लक सेड सीताराम. सीताराम उसको बोलता है, अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, मतलब भाग्य तुम्हारा साथ दे. I'll be on the lookout for a new job for you. मैं भी एक नए काम की तलाश में तुम्हारे लिए रहूंगा, मतलब मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छे काम को ढूंढूंगा. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of cloths hiding most of his head and shoulders. और इस तरह से वो भारी कदमों से नंगे पैर सड़क पे चला जाता है, उस कपड़े का बड़ा सा बोझ अपने सर पे रखे हुए, जिसमें उसका सर और उसके दोनों कंधे ढके हुए हैं, छिपे हुए हैं. एक और वर्ड यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड जो है, रिलेटेड वर्ड है, प्लॉड. तो प्लॉड जो है ना, वो जो मूवमेंट है उसको शो करने के लिए हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लिखते हैं. तो प्लॉड का मतलब हुआ भारी कदमों से चलना, मतलब बहुत काफ़ी या तो चिंतित हम हैं या फिर सर के ऊपर बहुत काफ़ी बोझ है, हम आसानी से चल नहीं पा रहे हैं. तो ऐसी स्थिति में ऐसे तरह के मूवमेंट को हम प्लॉड से एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ पे दिया भी हुआ इसका मीनिंग, वॉक स्लोली विद डिफिकल्टी बिकॉज ही वॉज कैरिंग समथिंग हेवी. यानी वो कठिनाई के साथ चल पा रहा है क्योंकि बहुत भारी सामान सर के ऊपर उसके बोझ रहता है, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ता है जाता है. At the fourth home he visited, delivering the washing, Sitaram overheard the woman of the house saying how difficult it was to get someone to sweep the courtyard. जब वो चौथे घर के पास जाता है कपड़ों को, धोए हुए कपड़ों को देने के लिए, तो सीताराम सुनता है एक औरत को ये कहते हुए कि कितना कठिन है आंगन को किसी के द्वारा बुहारा जाना, यानी आंगन को बुहारना बहुत कठिन काम है, ये सबसे नहीं हो सकता है. टाइंग हिज बंडल सीताराम सेड, अपने गांठ को बांधते हुए सीताराम ने कहा, आई नो. टाइंग हिज बंडल सीताराम सेड, तो सीताराम जो है वो अपने गांठ को बांधते हुए बोला, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज लुकिंग फॉर वर्क. मैं जानता हूँ एक झाड़ू मारने वाले लड़के को जो कि काम की तलाश कर रहा है. देखिए फिर से, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स इसमें मिलेंगे हम लोगों को पढ़ने को. एक और फ्रेजल वर्ब यहाँ पे मिला, लुक फॉर. जो फ्रेजल वर्ब है वो यहाँ पर है लुक फॉर. तो लुक फॉर का मतलब क्या हुआ, टू सर्च, है ना. लुक फॉर का मतलब हुआ टू सर्च, देखभाल करना, ढूंढना. टू सर्च मतलब खोजना, ढूंढना. तो सीताराम बोलता है कि मैं जानता हूँ एक लड़के को जिसको काम की तलाश है, जो काम ढूंढ रहा है. ही माइट बी एबल टू वर्क फॉर यू फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और वो शायद अगले महीने से आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाए. ही इज विद सेठ गोविंद राम्स बैंक जस्ट नाउ, अभी वो सेठ गोविंद राम के बैंक में काम कर रहा है. बट दे आर नॉट गिविंग हिम पे एंड ही वॉन्ट्स टू लीव, लेकिन वो लोग उसको उसकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो छोड़ना चाहता है. ओह इज दैट सो सेड मिसेस प्रकाश. श्रीमती प्रकाश कहती हैं, ओफ ऐसा है क्या, मतलब इस तरह की बात है, बैंक पैसा नहीं दे पा रहा है. एंड वाई आरंट दे पेइंग हिम, और क्यों नहीं उसको उसकी तनख्वाह दे रहे हैं. दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी सेड सीताराम विद अ श्रग. सीताराम अपने कांधों को उचकाते हुए कहता है, शायद उन लोगों के पास पैसे की कमी है, यानी उन लोगों के पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं. फिर से यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है श्रग. श्रग को यहाँ जो आपकी किताब में जो मीनिंग को दिया गया है इसके, वो है अ मूवमेंट ऑफ हिज शोल्डर्स अप एंड डाउन टू शो दैट ही डिड नॉट नो और केयर. यानी सीताराम जो ना अपने कांधों को ऊपर नीचे ऐसे उकचाता है,
ये बताने के लिए कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है या फिर मुझे इसकी परवाह नहीं, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ऐसे मतलब जेस्चर को, हाव भाव को दिखाने के लिए श्रग का यूज हुआ है। मिसेस प्रकाश लाफ्ड, श्रीमती प्रकाश हंसी इस बात पे। विल टेल हिम टू कम एंड सी मी व्हेन इज फ्री, ठीक है, कहो उसको जब उसे फुर्सत हो तो वो मुझसे आकर के मिले, यानी मुझसे मिले, मुझसे बात करे। ये फर्स्ट पेज था, अब हम लोग सेकंड पेज पे आते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। सीताराम glad that he had been of help to both a customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went on his way. सीताराम खुश हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसने जो है ना दोनों की मदद कर दी, अपने ग्राहक की भी, उस औरत को भी जिसको एक स्वीपर बॉय की तलाश है, और अपने दोस्त को भी जिसको की नौकरी की तलाश है, नए नौकरी की। और इस तरह से उसने अपने कांधों पे उस बैग को रखा और वहाँ से बंधन जो बंडल है, गांठ है कपड़ों का, उसको रखा झोले को, और वहां से वो चल पड़ा। Soon after, Mrs. Prakash set out for the bazaar to make her usual afternoon tour of the cloth shops. तुरंत उसके बाद श्रीमती प्रकाश बाजार के लिए निकल जाती हैं, क्योंकि वो प्रत्येक दोपहर कपड़े की दुकान के पास वो जाती हैं, उनके वो दैनिकचर्या में है। A large shady tamarind tree grew near the clock tower. एक बड़ा सा छायादार इमली का पेड़ क्लॉक टावर के पास था। It was here that she found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. यहीं पर उन्होंने अपनी दोस्त श्रीमती भूषण को गर्म से राहत के लिए पेड़ के नीचे पाया। गर्म से राहत पाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे वो खड़ी थी मिसेस भूषण, श्रीमती भूषण, जो वहां उनको मिल गई। डू यू नो माई डियर, मिसेस प्रकाश सेड, श्रीमती प्रकाश ने कहा, मेरी प्यारी सखी, क्या तुम्हें पता है, दैट सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉइज, ये कि सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो अपने कर्मचारियों को भी पैसा नहीं दे पा रहा है। Only this morning I heard a complaint from their sweeper boy who hasn't received his pay for 2 months. आज ही की सुबह मैंने ये सुना कि उसका जो स्वीपर बॉय है, जो सफाई कर्मचारी है, झाड़ू देने वाला, बुहारने वाला जो लड़का है, वो शिकायत कर रहा था कि उसको 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। It's disgraceful, exclaimed Mrs. भूषण, श्रीमती भूषण आश्चर्य व्यक्त की, बोली ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही लज्जाप्रद बात है। डिस्ग्रेसफुल का इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, बैड और अनएक्सेप्टेबल, दैट द पीपल एट द बैंक शुड फील असेम्ड अबाउट, यानी बैंक के लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि वो नहीं दे पा रहे हैं। तो डिस्ग्रेसफुल को हम शर्मनाक कह सकते हैं, लज्जाजनक कह सकते हैं। इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे, अगर वो लोग एक झाड़ू को हारने वाले लड़के को भी नहीं पैसा दे पा रहे हैं तो बैंक सच में बहुत ही बुरी स्थिति में है। None of the others can be getting paid either, तब तो फिर और भी जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं उन लोगों को भी पैसा नहीं मिल पा रहा होगा। Mrs. Bhushan left Mrs. Prakash at the tamarind tree and went in search of her husband, who was found sitting under the fan in Jugal Kishore's electrical goods shop, talking with the owner. श्रीमती भूषण श्रीमती प्रकाश को वहीं पे छोड़ देती हैं और उस इमली के पेड़ के पास, और वहां से वो चले जाते हैं अपने पति को ढूंढने के लिए, जो कि जुगल किशोर जी की जो इलेक्ट्रिकल गुड शॉप है, उस शॉप में पंखे के नीचे वो आराम कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, और मकान उस जो मालिक होता है उस दुकान का, जुगल किशोर जी, उनसे वो बात करते होते हैं। सो देयर यू आर, क्राइड मिसेस भूषण, श्रीमती भूषण कहती हैं तो आप यहाँ पे हैं। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर नियरली एन आवर, मैं आपको करीब 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ। देखिए फिर से एक बार जो फ्रेजल वर्ब आया, लुक फॉर आया ना, जिसका मतलब होता है खोजना, ढूंढना, पता करना। आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग टू दिस टाउन, मुझे नहीं पता इस शहर में क्या हो रहा है। डिड यू नो द बैंक इज गोइंग बैंकरप्ट, क्या आपको पता है कि बैंक जो है वो दिवालिया घोषित हो रहा है, मतलब बैंक के पास अब पैसे नहीं रहे जो ग्राहकों से उसने पैसे लिए थे, और इस तरह से बैंक अब बर्बाद हो रहा है, कोलैप्स्ड हो रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है। What did you say? said Mr. जुगल किशोर, sitting up suddenly. तो जो जुगल किशोर है वो जो है ना, सिटअप का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं सीट इरेक्ट है ना, या फिर सिटअप टू बाउंस टू अ कंफर्टेबल हाइट, अचानक से वो मतलब थोड़े से उठ खड़े होते हैं बैठे बैठे,
अचानक से कहते हैं कि क्या कहा आपने, विच बैंक, कौन सा बैंक, यानी कौन सा बैंक जो है ना दिवालिया घोषित हो रहा है या फिर उसके पैसे पूरे खत्म हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है ना वो नाम लेते हैं कि कौन सा बैंक जो है ना बैंकक्रप्ट हो गया है। ऐसा करते हैं, हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, है ना, तो आगे की जो पढ़ाई है वो अगले वीडियो में हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टिल नेक्स्ट मीटिंग, हैव अ नाइस डे।